Okay, students, a very good morning to all. Yesterday, we did the soil chapter in which we did different layers of soil. We did soil profile, right? हमने क्या किया था? Soil profile. Today, I will be showing you diagrammatically diagram of soil profile. Hurriedly do it. After that, we have to do types of soil with their characteristics. Start drawing. How we can see the soil profile? हम soil profile check कैसे कर सकते हैं? Yes, we have to dig the soil, right, vertically. Then after digging, what we will see? एक section ले लेते हैं हम. Do like this. यहाँ पे rock pieces broken, right? Broken rock pieces are there. Then उसके ऊपर ये जो थर्ड लेयर है, partial weathering of rocks, means छोटे छोटे pieces. Then after that there is B horizon. Very less humus, but water is there in this layer. What is the problem over here? Then at the top, more darker layer is there. इस तरह से बना देती हूं मैं. Topsoil, right? In this layer, lot of humus is there, इसलिए ये इससे dark है. B horizon से आपका mask, right? And in this layer, plants are grown. क्या प्रॉब्लम क्या? It is home to many small animals. ये small animals का घर है. And the roots of trees, they reach this layer. ये नीचे तक आती है. Roots of the trees. आप इस तरह से बना सकते हो. Stop talking. First layer is A horizon. ये इतना A horizon. This is also known as topsoil. Second is B horizon. This is also known as subsoil. Third is this layer of substratum C horizon. ये partially weathered rocks हैं जिनकी complete breakdown नहीं हुआ. C horizon. This is known as substratum. And this is B horizon. And it is known as bedrock. Now see students, in this layer, after C horizon, water does not penetrate through this layer. इन layers में से pass नहीं होता. So it gets accumulated here.
यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है वाटर, यहाँ टॉप पे, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। गॉट इट? इसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। इज दिस क्लियर? द लेवल ऑफ दिस ग्राउंड वाटर, इट राइजेस व्हेन देयर इज प्रॉपर रेनफॉल, बट द लेवल डिक्रीजेस once there is drought. Yes, Akriti, any doubt? मैम कैमरा थोड़ा सा नीचे करना मैम, वो दिख नहीं रहा। Stop talking. ठीक है बेटा, बना लिया तो क्या? मैंने ना क्लास के बाहर खड़े कर देना। आप मास्क वियर करो प्रॉपरली, और आपको मुझे हर मिनट कहना पड़ रहा है सात्विक, मानिक, can't you listen, Harjeet? Wear the mask properly. Done to good. Stop it. Very good. If you are done, let others do. After this, I am going to erase it. इस डायग्राम को कहते क्या है? सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल। टॉप सॉइल की क्या एग्जांपल है? कल हमने करेक्टरिस्टिक्स करे हैं। हाँ, डार्क इन कलर, मोर ह्यूमस, रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रो हियर, होम टू मैनी एनिमल्स। हरी आप। हाँ जी कृष्णा, क्या क्या कह रहे हैं? आपको इतनी दूर से पेन मार रहा है? आप उठिए यहाँ से, गेट अप, कॉपी उठाइए, ये इधर फर्स्ट सीट पे आइए, उधर आ जाइए। Hurry up, complete it. After that, we have to start types of soil. Done? हो गया? Hurry up, I am going to erase it. इतना टाइम थोड़ी लगता है। Stop talking. आपको बैठना नहीं आता, आप सीधे नहीं बैठ सकते, बॉटल को नीचे रखो। Okay, students, let us move to next topic, types of soil. बच्चे, basically there are three types of soil. They are sandy, clay, and loamy. This division is done on the basis of size of rock particles from which it is made. कौन से रॉक पार्टिकल से ये बने और इनका साइज क्या है, उसके हिसाब से ये डिवीजन की गई है. So there are three types of soil: sandy,
clayey and loamy, right? So coming to sandy soil, first point, contains large amount of sand. बहुत ज्यादा सैंड होती है इसमें. Sand particles are more. What is the characteristic? Sand particles are more, about 70 to 80%. Got it? Then next, on the basis of this, what is there? Next is because sand particles are large, right? So they cannot fit into each other. Sand particles are large, they cannot fit into each other. So there are lot of spaces in between the particles. Particles के बीच में there are lot of spaces. Due to these lots of spaces, it is जाओ. Yes students, भव्या क्या क्लियर नहीं है बेटा? हाँ जी, जा रहे वो, वेट करो. Yes students, I am speaking again. Soil particles of sand, they are large in size. Because they are large in size, so there are lot of spaces between the sand particles, due to which it is well aerated. Well aerated means इसमें हवा अच्छे से पास होती है. It is well aerated. 70 to 80%. Got it? Second important point. Because soil particles are large, there are large spaces between the particles, so it cannot hold much water. इसमें पानी खड़ा ही नहीं होता. Soil particles are large, there are large spaces present in between the particles, so it cannot hold much water. Got it? Then it is very light. Light मतलब हल्की है. It is very light in weight. This soil has tendency to be blown away. क्यों हमेशा सैंड ज्यादा उड़ती है? क्या कारण है सम्राट? सैंड में क्या होता है? क्योंकि हवा इजीली पास होती है, पानी उसमें रुकता नहीं है, सारा पानी उसमें से निकल जाता है, इसलिए वो ड्राई हो जाती है. ड्राई हो जाती है तो वो हल्की होती है. हल्की होती है तो वो इजीली कैन बी ब्लोन अवे बाय द विंड. राइट? हाँ जी, टू बी ब्लोन अवे. It has the tendency to be blown away. Got it? Next, very important point. Lacks humus. Humus की कमी, so it is less fertile. It lacks humus, so it is less fertile. Now next point, very important. It cannot hold water. It does not have humus, so it is not suitable for growing crops. Right? Somebody is whispering, why? Not suitable for growing crops. Then because water cannot be holded by this soil, so
चिपकती नहीं है क्योंकि ड्राई रहती है, एंड इट इज फाउंड इन डेजर्ट्स। चलिए मास्क क्लियर कीजिए। मानिक आपका मास्क कहाँ है? किसको चक्कर आ रहे हैं? कनिष्क, एनी प्रॉब्लम? क्या बात है? हाँ, तो ठंडा पड़ा तू तो कुछ खा, कुछ खा ले। कुछ नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना। गो टू मेडिकल रूम, वो मैम अपने आप देखेंगी। बेटा जब आप नहीं बियर कर पा रहे हो तो क्यों रखा है? तभी जाओ मेडिकल रूम जाओ, गो टू मेडिकल रूम। भेजू किसी को साथ के? चले जाओगे? हाँ, गिर तो नहीं जाओगे? कनव आप जाओ जरा उसके साथ, गिर ना जाए वो। मेडिकल रूम, ये लेक्चर देख लेना, ठीक है? Yes, I hope this is clear to you. Now coming to next type of soil, that is clay soil. बच्चे, this soil contains large amount of clay. इसमें क्या होता है? Large amount of clay and very small amount of sand and silt. बाकी चीज में इसमें बहुत कम होती है। Large amount of clay, sand and silt. Then इधर लिखा था well aerated, क्या कारण था? Because sand particles were large. Now here in this case, clay particles are smaller in size, so they are tightly packed together. So there are no spaces or very less spaces. So little air can pass through it. In other words, you can say less aerated. आपको पूरे रीजंस के साथ एक्सप्लेन करने होते हैं पॉइंट्स। लेस एरेटेड, next, because clay particles are tightly packed, very less spaces are between there. Clay particles are tightly packed, smaller in size, very less space is between the particles. So water cannot pass through it. It holds the water, holds the water in large amount. अच्छे से वाटर को होल्ड करके रखते हैं ये, राइट? और जैसे ही रेनी सीजन आता है, क्लेई सॉइल पानी से भर जाती है। Why? Because पानी इसमें से सीप नहीं कर पाता, निकल नहीं पाता। Clay soil get waterlogged very easily. Number 4, it gets dried या it gets hard. It gets hard on drying. जब तक ये गीली है, आपने क्ले देखी होगी जिससे बर्तन वगैरह बनाते हैं मिट्टी के, ठीक है, या स्टैचूज भी बनाते हैं। जब तक गीली है वो चिपचिप कर रही है, जब सूख जाएगी इट बिकम्स वेरी हार्ड। इट बिकम्स वेरी हार्ड ऑन ड्राइंग, और फिर ये हवा वगैरह से उड़ाई नहीं जा सकती। Becomes very hard on drying. It is heavy. Heavy क्यों? Why it is heavy?
बिकॉज इट कैन होल्ड वाटर। आप क्ले को, गिल्ली क्ले को, चिकनी मिट्टी को क्या आप उठा सकते हो? भारी होती जाएगी, जितना उसमें पानी होगा वो भारी होती जाएगी। इट इज वेरी हैवी। देन इट इज स्टिकी, स्टिकी, चिप करती है, स्टिकी व्हेन वेट। यू नो, आपने कभी दलदल वर्ड सुना है? क्या होता है दलदल में? अगर कोई बीच में गिर जाए वो बीच में ही धंसता जाता है, इट कैन नॉट कम आउट, क्योंकि वो क्ले जो है वो स्टिकी होती जाती है। इट इज वेरी स्टिकी, वो चिपकती रहती है अंदर नीचे, पता ही नहीं कितनी क्ले और पड़ी है। हाँ जी, मिल गए मैडम। रेस्ट कहाँ करेगा? हाँ तो गो इन मेडिकल रूम, गो इन मेडिकल रूम, गो। Stop it. Is this clear? Any doubt up to this? Coming to loamy soils. Less aerated because the particles are small, so they are tightly packed. So there is very less space between the particles. If there is less space, air cannot pass through it easily. Means it is less aerated. हाँ जी, साइड पे है, आप ड्राइंग बना लो। हाँ जी, अब रिकॉर्डिंग चल रही है। Shall I start with now? Coming to loamy soil. This soil contains equal amount of sand and clay. जितनी सैंड है उतनी क्ले है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सिल्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट, सिल्ट भी प्रेजेंट है। गॉट इट? नहीं ग्रो होती क्रॉप्स, राइट? दिस सॉइल इज वेरी गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। व्हाई? क्वेश्चन ऐसे आता है, व्हाई लोमी सॉइल इज बेटर देन सैंडी एंड क्लेई सॉइल टू ग्रो क्रॉप? बिकॉज इट इज, व्हाई? चलिए, बिकॉज इट हैज बोथ सैंडी एंड क्लेई सॉइल, both sand and clay particles, right? So it has हाँ जी, right water holding capacity. मीन्स इसमें सैंड भी है और क्ले पार्टिकल्स भी है। तो जब हम पानी डालते हैं, सैंड उस पानी को नीचे भेज देती है, बट क्ले उसको होल्ड कर देती है। मीन्स ना ज्यादा पानी होल्ड होता है, ना सारा पानी पास आउट हो जाता है। So it has right water holding capacity. Got it? हाँ, लोमी मैंने पहले बोला, लोमी is best for growing crops. Number 3, next point. It has, हाँ जी, right water holding capacity. It has adequate air spaces. अच्छी खासी air spaces हैं due to sand. सैंड की वजह से अच्छे खासे एयर स्पेसेस हैं। देन इट कंटेन्स ह्यूमस विच मेक्स इट वेरी फर्टाइल। ह्यूमस है इसमें, इट कंटेन्स ह्यूमस
विच इज वेरी गुड। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, देन दिस कैन बी plowed easily. सॉइल ग्रो करने से, क्रॉप ग्रो करने से पहले सॉइल को प्लो किया जाता है, राइट? दिस सॉइल, लोमी सॉइल, कैन बी प्लोड इजीली। क्या हो रहा है? With this, we have finished types of soil. Any doubt in these three types? This is otherwise very general chapter. ठीक है, आपने काफी कुछ किया हुआ है, कुछ चीजें नहीं है इसमें, ये भी आपने थर्ड फोर्थ में किया है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल की प्रॉपर्टीज माने, कैन एनीबॉडी टेल मी द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल? खासियत, और प्रॉपर्टीज होती है कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है उसमें, क्या है ऐसा कि उसको सॉइल कहा जाता है? एब्जॉर्ब, इट हैज एयर प्रेजेंट इन इट, ये हमने प्रूव कर दिया था। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, स्टार्ट कीजिए, एक्सप्लेनेशन कल दूंगी। इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं। यस यस, कैसे आगे तुझे? ये मास्क क्लियर करो, बार बार इस क्लास को बोलना पड़ता है। स्टिच कर दूं? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, soil contains air. Second property, soil contains water. Soil contains air, soil contains water, soil can absorb water, soil can absorb water. Then next, soil allows water to percolate. Percolate के स्पेलिंग लिख रही हूँ, समझाऊंगी कल। Soil allows water to percolate. क्लेई सॉइल में प्लांट्स ज्यादा नहीं ग्रो कर सकते बिकॉज इट इज वाटर लॉक्ड। जो रेनी एरियाज में प्लांट ग्रो करते हैं, वाटर लॉक्ड एरियाज में, जिनके मैंग्रोव, जो आपने पढ़ा था ब्रीदिंग रूट्स निकल के आती हैं, ओनली दोस प्लांट्स कैन ग्रो। वहां पे हमने क्या करा था? क्लेई सॉइल इज देयर। आपको याद है मैंग्रोव्स आपने पढ़े हैं फोर्थ में, उनमें ब्रीदिंग रूट्स होती हैं। वो रूट्स सॉइल में से बाहर निकल के आके ब्रीथ करती हैं। व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज वो सॉइल में पानी भर जाता है और एयर पास नहीं होती, तो वो क्लेई सॉइल है, स्टिकी सॉइल। इट डज नॉट अलाउ एयर टू पास बिकॉज इट इज फिल्ड विद वाटर, राइट? सो द प्लांट्स which can have breathing roots, only they are able to grow. और सैंडी में भी ऐसे ही है, क्योंकि पानी रहता नहीं है। सो ऐसे प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं which need less water, like cactus, dates. बेस्ट सॉइल लोमी है, जिसमें दोनों पार्टिकल्स होते हैं, प्लस ह्यूमस भी है। अब सैंडी में ह्यूमस भी नहीं रहेगी। गॉट इट? हाँ जी, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने प्रूव करनी है। सॉइल अलाउज, soil has water, soil absorb water, soil has
एयर सॉइल अलाउज वाटर टू परकोलेट, ये सारी हमने प्रूव करनी है, क्लास में करा दूंगी। एयर वाली हमने प्रूव कर दी, वेरी गुड, दिस वाज डन। कैसे करी प्रूव? Then what happened? Bubbles were formed. This shows that soil contained air. ये जो पीछे हाँ जी, आर यू ओके नाउ? एनी प्रॉब्लम? क्या खा के आए हो? ओके स्टूडेंट्स, विल बी मीटिंग टुमारो। भव्या स्क्रीनशॉट भेज देना।